Good morning, students. So, today let us continue with the topic of alcohols, phenols, and ether. And this topic, I think, would be completed by this Thursday. Hopefully, if we do take the regular videos, which I think I would. Anyway, so let us now first of all recall certain terms what we were doing. We were doing the part of alcohols, phenols, and ether. What do you mean by alcohols? It is a functional group which is normally being associated with alkyl, or it can be associated with the aryl group also. Alkyl means the CnH2n plus 1 groups, and aryl, that means the C6H5 groups, right? So those groups, when they are connected with the OH group, then they are called as alcohol or phenol. Currently, we'll be talking about the word phenols. Now, what are phenols? As I told you, basic benzene ring, ऊपर आप OH लगा दोगे, बन गया phenol. मैंने आपको last video में, if you remember, मैंने आपको बताया था that alcohols are very, very weak acids. They are even weaker acids than water. That means that technically they are not even, kind of known as acids as well. But still, alcohols are weak acids than water. But exception over here is the word what? That is phenols. So phenols भी of course उतने stronger नहीं होते हैं in terms of acidic strength, but yeah, if you are comparing with the part of alcohols, then of course phenols are far more higher acidic as compared to alcohols. Okay, you would come to know the reason about this as in why. So without wasting time, let's first of all talk about the reaction. So today we'll be completing the reactions of phenols. Okay. Phenols as acids. So as I told you कि phenols के अंदर भी एक H आयन को लूज करने की एबिलिटी होती है, बट ऑफ कोर्स वो बहुत वीकर होगी या बहुत स्ट्रॉन्गर होगी. किन किन रीजन पर वो डिपेंड करेगा, दैट वी आर गोइंग टू सी इट इन द टुडेज लेक्चर. सो रिमेंबर, आज के लेक्चर में से बोथ फॉर स्टेट एज वेल एज फॉर सीबी एक क्वेश्चन नॉर्मली कंफर्म्ड आता है, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज का, या बॉइलिंग पॉइंट्स का, या फिर बाय द वे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, या रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, या फेनॉक्साइड आयन के लिए, या एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के लिए. सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल. नाउ रिएक्शन विद मेटल्स. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड फेनॉल, सो रिमेंबर मैंने हर जगह पर लिखा नहीं है बिकॉज इट बिकम्स कम्बरसम, बट इफ यू वांट आई कैन राइट द वर्ड फेनॉल ओवर हियर. सो यदि आपने फेनॉल को सोडियम आयन के साथ में या सोडियम एटम के साथ में यदि आपने रिएक्ट किया है, सोडियम मेटल के साथ में आपने रिएक्ट किया, सो यू विल गेट सोडियम फेनॉक्साइड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दो अब तक आपको रट चुका होगा, बट स्टिल यदि नहीं तो अभी कर लेना. फेनॉल प्लस सोडियम विल गिव यू ONA. व्हाई? बिकॉज H का क्लीवेज हो जाएगा. Because that's what we said, right? कि acid का मतलब क्या होता है? That means that that particular substance is going to lose that H positive ion from the solution. So यहाँ पर आ जाएगा ONA. So this is going to be sodium phenoxide plus half moles of H2. Okay. So that is over there. Now the second reaction is reaction with alkalis. What do you mean by alkalis? जितने भी आपके बेसिस होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल सोडियम आपने हाइड्राइड ले लिया, या सोडियम कार्बोनेट ले लिया, या कुछ भी जनरली, या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में. सो ऑल ऑफ दीज आर नथिंग एल्स बट इज एल्कलीज. मेटल्स के साथ में जब भी आप कभी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो बनाते हो, सो बेसिस को जब भी आप वाटर में डालते हो, दे आर नोन एज एल्कलीज. सो यदि मैंने अगेन फेनॉल को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा के साथ में रिएक्ट किया, सो एज यूजुअल क्या हो जाएगा? O तो गया, H जाएगा वहां से, so O will remain over there, Na will connect over there, and this H and this OH will combine to form what? World's most best, compound altogether, and that is water, H2O. So that means यदि आपने फेनॉल को because of this acid giving property यदि H के साथ में OH के साथ में यदि आपने करा, तो it will give H2O, और ये बन जाएगा क्या? That is sodium phenoxide ion or sodium phenoxide. Okay. Now, very, very, very to the limit infinity important points, both for state boards as well as for CBSE board as well as for all the other boards, whosoever are watching this. If you want to have some basic sense of how the chemistry goes, then please remember that phenols do not react with carbonates or bicarbonates. So if you are thinking about the word Na2CO3, or by the way the MgCO3, or the words
लाइक NaHCO3, यदि आप सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हो लाइक वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा, तो फिनॉल्स विल नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ देम, तो वो बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट नहीं करता। दैट मीन्स दैट इस रिएक्शन का जेनेरिक वर्जन मत निकालना कि ये सारे एल्कली से रिएक्ट करेगा, नहीं। करेक्ट? ओके। As I told you in the starting of the lecture, phenols are more acidic than alcohol. But the question is why? Of course, I'll tell you the reason. But remember that phenols are more acidic than the aliphatic alcohols. तो जितने भी जो aliphatic alcohols होंगे उनसे तो of course phenol ज़्यादा acidic होगा. But don't think कि इसमें आप हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा. So phenols उतने भी ज़्यादा acidic नहीं होते हैं. But of course, as compared to यदि आप बात कर रहे हो suppose that is comparison with alcohol की, तो of course they are reactive. Of course, since they are comparatively stronger acids as compared to alcohols, of course they are going to turn blue litmus into red, while alcohols will never ever turn blue litmus into red. So पहला difference ध्यान रखना, जितने भी aliphatic alcohols होते हैं like ROH, CH3OH या CH3CH2OH, okay, like those, like methanol, ethanol, propanol, butanol, all of these will not turn the blue litmus into red, but phenol would do that. Okay, now दो phenols के vapors बड़े dangerous होते हैं, but anyway, खैर, so phenols are more acidic than alcohols and turn blue litmus red because of polar OH bond. Now the word comes up, सर आपने रीजन लिखवाने के लिए कुछ भी बता दिया सर, क्योंकि केमिस्ट्री में तो कुछ भी चलता है. एज इन why OH bond becomes actually more polar over here. Now यहाँ पर that is resonance का फंडा होता है, प्लस OH वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर एक्चुअली में resonance of course is the right word for phenoxide ion. तो आप इसको ऐसे समझो कि this particular compound that is ONA, ये जो phenoxide वाला पार्ट बना है, ये कितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्या ये फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है. सो रिमेंबर दैट जब भी कभी ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द फिनॉल. दैट मीन्स यदि आप इसके रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे ऑन ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशंस के ऊपर में डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को, देन यू वुड कम टू नो दैट फिनॉल्स के अंदर ये वाला स्टेबलाइजेशन काफी कम होता है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड के वजह से जब ये O के पास में आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, बिकॉज Na को मैंने साइड में निकाला हुआ है, सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज दिस नेगेटिव चार्ज. सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वुड बी व्हाट, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वुड बी मोर स्टेबल. सो जब बात आ जाती है कि ये ज्यादा स्टेबल है, कि ये तो कॉमन सेंस है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मोर स्टेबल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एट इक्विलिब्रियम फिनॉल बनने से बेटर वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा. दिस मीन्स दैट टिल द टाइम यू आर comparing between phenol and the phenoxide ion, which one is more stable? Of course phenoxide ion is more stable. Got it? So why is, by the way, phenol more acidic than the alcohols or the alkyl alcohols? The only reason is because alkyl alcohols के अंदर resonance ही नहीं होता, neither on the alkoxide ion के अंदर भी resonance नहीं होगा, nor in the alcohol के अंदर. So जब दोनों में कभी भी resonance होता ही नहीं है, because there is no alternate double bond which is moving all together, no delocalized electrons, that's the reason why phenols will always be more acidic as compared to this one. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now very important point, again एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, and that is EWG. What is EWG? That is known as electron withdrawing groups. तो आपने EWG क्यों लिखा है इसे? क्योंकि मैं आलसी हूँ, that's the reason why guys. I mean guys, इतना बड़ा स्टेटमेंट हो रहा था तो मैंने सोचा छोटा शॉर्टकट में लिख दूँ. So EWG. So what is EWG? That is electron withdrawing groups. Now what do you mean by electron withdrawing groups? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं अपने तरफ में, राइट? और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ERG. व्हाट आर ERG? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से रिलीज करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल NO2 वाला कंपाउंड हो सकता है. व्हाट एल्स? इट कैन बी एन एल्डिहाइड, दैट इज CHO, राइट? तो ये दोनों या इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होंगे,
ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, आप इनको जब भी कभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कनेक्ट करोगे, सो दे विल ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रिमेंबर। सो दैट मीन्स दैट EWG जब भी कभी आप NO2 को कनेक्ट करोगे एट द ऑर्थो पोजीशन और एट द पैरा पोजीशन, द एसिडिक स्ट्रेंथ वुड इंक्रीज, ओके। नाउ and now why would it increase? It would only increase because जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ऑफ सोडियम फेनोक्साइड आयन का वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई, ओके। सो it would increase strength by stabilizing phenoxide ion through resonance. So I have already told you this earlier, so no need to read it out. On the other hand, यदि आप ERS लगाते हो, that is electron releasing group, like methyl आपने लगा दिया, CH3 लगा दिया, NH2 लगा दो आप. For example, in the case of cresol, what is cresol? OH, that is, this is cresol, guys. See, that's the reason why I don't write any extra information, I get deviated. So this is, by the way, cresol. So this will be known as O-cresol, orthocresol. यदि आप यहाँ लगाओगे तो be known as M-cresol, यहाँ लगाओगे तो get known as paracresol. So these are electron releasing groups. ये electrons को release करेंगे towards the ring के तरफ में. While यदि आपने suppose कर लो NO2 लगा दिया इस जगह पर, तो NO2 is going to do what? It is going to suck the electron. It is not going to give. It is going to suck the electron. So that means that, let us say, suppose I have got this particular structure over here, and यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, and let's say suppose मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया. मैं पहले पैरा पोजीशन पे ही लगा देता हूँ. NO2 लगा दिया, तो एरो किस तरफ में बनाऊं? ऊपर की तरफ में या नीचे की तरफ में? Since they are electron withdrawing groups, that means this will be, arrow will be towards the NO2, electron withdrawing. On the other hand, if I am making this particular structure, that is, say suppose मैंने यहाँ पर लगा दिया OH and then मैंने यहाँ पर लगा दिया CHO. So this will be the electron releasing group. It will be releasing the electron, density towards the ring. Okay. So EWG will always increase the acidic character and ERG will always decrease or lower down the acidic character. तो इसका मतलब है जितने भी आप नाइट्रो या एल्डिहाइड वाले आप कंपाउंड्स लगाओगे, मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिया, सॉरी, मुझे यहाँ पर OR लिखना चाहिए था, और लेट्स टेक NH2 लिख देता हूँ यहाँ पर, बाय फॉल्ट. ओके, मैंने यहाँ CHO लिख दिया था. CHO इज ऑल्सो बाय द वे एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो यदि मैंने NH2 यहाँ पर लगा दिया ना, दैट इज बाय द वे दिस. आपको ये भी नहीं ध्यान रखना, तो क्रेसोल ध्यान रख लेना गाइस, CH3. सो दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये आप क्या कर रहा है, ये इसको रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर साइड, टुवर्ड्स द रिंग, व्हाइल ये रिंग से ले रहा है डेंसिटी. ओके, नाउ so electron withdrawing groups will always increase what? Always increase the acidic character. Means जितने groups आप लगाओगे at para and ortho position पे, then of course उनकी acidic character बढ़ जाएगा. इसका मतलब pH value कम होती जाएगी. On the other hand, आप जब भी कभी electron releasing groups को लगाओगे, say ortho and para positions के ऊपर में, then उस केस में क्या हो जाएगा? The acidic character will decrease. Okay. आगे बढ़ते हैं. सो ये मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर एंड एसिड स्ट्रेंथ, इट विल डिक्रीज. नाउ सी दिस पर्टिकुलर पार्ट गाइस, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है दैट पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो, इज ग्रेटर देन मेटा, इज ग्रेटर देन फिनॉल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस. सो मैं यहीं पर लेता हूँ, बिकॉज़ द बोर्ड डजंट हैव स्पेस एंड आई एम रबिंग द बोर्ड विद माय हैंड. यू नो, कोरोना का असर हो रहा है मुझ पर भी, मेरे को लग रहा है. खैर, ओके, सो देयर इज, से सपोज दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड मान लो मैंने यहाँ पर एक बना दिया. दिस इज जस्ट फॉर द पार्ट ऑफ एग्जांपल, रैंडम, टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. सो मैंने यहाँ पर लगा दिया, दिस इज नोन एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मैंने 2 बार फिंगर यहाँ पर इसलिए किया बिकॉज ऑर्थो की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे होता है. ओके, सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, लेट्स मेक अनदर वन विच विल बी नोन एज मेटा नाइट्रोफिनॉल. सो यहाँ पर आपने बना दिया फिनॉल, यहाँ पर आपने बना दिया मेटा. Then comes, so there is this OH and there is this NO2. So this is what? This is paranitrophenol. Now the question comes, इसके अंदर से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा?
सबसे पहले तो ग्रुप चेक करो क्या वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब ध्यान रखना, पैरा पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल आपको आयन देती है, इसका मतलब मोर स्टेबल वुड बी द फेनॉक्साइड आयन। सो दैट सिंपली मींस कि मतलब एच जल्दी निकलेगा, इसका मतलब हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। दैट मींस इन तीनों में सबसे हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा होगा? फर्स्ट पैरा, सेकेंड ऑर्थो, थर्ड मेटा। अब फोर्थ कौन सा हो जाएगा? इन सबसे गया गुजरा जिसमें NO2 ही नहीं है, और वो कौन सा ग्रुप है अपने पास में? विच इज नोन एज फिनॉल। So this should be which one? Fourth. That's so simple, guys. Now suppose करो किसी ने आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा नहीं आप मेरे को बेसिसिटी के लिए बताओ गाइस, स्ट्रक्चर उल्टा कर देना। किसी ने आपको बोला नहीं नहीं यहाँ पर NO2 मत लगाओ, यहाँ पर आप मुझे CH3 लगा के बताओ, क्रेसोल ला के बताओ। गाइस क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहला काम, ट्रिक नंबर 1 चेक करो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, CH3 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ही होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी it will be pushing towards this particular side. That means that it is going to destabilize the phenoxide ion, and that means that this particular part will not be so easily broken up that way. Got it? Now this simply means only one thing, that you can actually find out the acidic and the basic character of these particular compounds with the help of electron releasing or electron withdrawing groups. आगे बढ़ते हैं guys. Let's now move on to the part, सपोज कर लो ज्यादा लग गए मतलब ज्यादा मोर देन वन ग्रुप आपके पास में लग गया। ये जैसे मैंने अभी आपके पास में केवल ये एक जगह पर नाइट्रो बनाया था, नहीं, आई एम मेकिंग वन मोर नाइट्रो समवेयर ओवर हियर, बना देता हूं नाइट्रो, एंड आई एम मेकिंग वन मोर नाइट्रो ओवर हियर आल्सो। नाउ मोर द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विल अफेक्ट द एसिडिक कैरेक्टर। हाउ? यदि आपके पास में NO2 के 3 ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, सो दैट मींस यदि वो 3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मोर इंक्रीज, नॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आई मीन एसिडिक कैरेक्टर विल मोर इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड यदि मान लो केवल 2 ही नाइट्रो हैं आपके पास में, 2 ही नाइट्रो के ग्रुप लगे हुए हैं, से ओवर हियर एंड ओवर हियर, देन क्या होगा? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू 3 वाले से कम होगी कि ज्यादा? कॉमन सेंस कम होगी। यदि सिंगल ही होगा तो और भी कम होगी, एक भी नहीं होगा तो मैंने बता ही दिया आपको। एंड इन द सेम वे यू कैन डू इट फॉर द ERG आल्सो। सो दैट्स द रीजन व्हाई दिस पॉइंट इज ओवर देयर, दैट इज मोर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स or more the electron withdrawing groups, it shouldn't be ERS, it should be ERG, electron releasing groups। मैंने यहाँ पर भी वही लिखा है क्या? Okay, my fault. So it should be ERG. So more the ERG. Okay, so as I told you, so remember this particular point, okay, more the number of groups, and of course more will be either the acidic strength or lesser it would be. Let's now come on to the word reactions. So the reactions, first of all of phenols we are talking about, will be acylation. कल reactions phenol की पूरी खत्म हो जाएंगी, including the word coal-based synthesis and each and everything. So we would be then, I think it would take around 1 day or 1.5 day more for the reactions of phenol to complete, and then we would be entering into the world of ether. Okay. Now acylation. So what do you mean by the word acylation over here? एसाइल ग्रुप का मतलब समझो पहले। एसाइल का मतलब होता है CH3CO। अब यदि उन्होंने बोल दिया नहीं, इट इज एसिटाइल क्लोराइड, then CH3COCl, like that. Okay, so let's see. So phenol plus acetyl chloride, that is CH3COCl, CH3COCl। अब कॉमन सेंस लगाओ, आई डोंट नो रिएक्शन में क्या बनेगा, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे इतना मालूम है कि यहां से H वाला पार्ट निकल रहा है। अब यदि H निकलेगा तो कहां कनेक्ट करेगा? अब ब्रेक कहां से करोगे? CH3CO एंड Cl वाले पार्ट से, लाइक दिस, करेक्ट? ट्रू? सो दैट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर HCl विल गो आउट, और यहां पर क्या कनेक्ट हो जाएगा? OCOCH3। बट सर हाउ शुड वी गिव द नेम? सर नाम से इतने टफ होते हैं। सी, फिनॉल का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग एंड OH।
जब भी कभी एक हाइड्रोजन हटाते हो तो वो एल्काइल वाला पार्ट याद है, तो ऐसे ही फिनॉल का क्या बन जाएगा, फिनाइल, तो बना देना फिनाइल, एंड इट विल बी व्हाट, एसीटेट। सो फिनॉल एसीटेट बन गया आपके पास में। गुड। सो ये आ चुका फिनॉल एसीटेट प्लस HCl गॉन आउटसाइड। दिस इज एसाइलेशन रिएक्शंस। व्हाई बिकॉज यहां पर आपके पास फिनाइल एसीटेट बन रहा है और यहां पर आपने एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया था। जस्ट एक चीज ध्यान रखना, एरो के ऊपर में इट हैज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पाइरिडीन मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। लेट्स अज्यूम दैट सर मेरे पास में एसिटाइल क्लोराइड नहीं है, मेरे पास में एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल गाइस, CH3CO, O की 2 वैलेंसी होती है, आपको सिखाया होगा बचपन में 7th 8th 9th जब भी। खैर, सो CH3CO एंड देन अगेन डैश के साथ में एक और CH3CO कनेक्ट कर देना। सो लेट्स सी, सो दिस इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। So phenol plus acidic anhydride in the presence of H2SO4 or what, sodium ethanoate, that is CH3CONA, okay। So sodium ethanoate, ये क्लास 10th में इसलिए आपकी तरफ में देख रहा हूँ बिकॉज क्लास 10th याद करो, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एनीवे खैर, so phenol plus acidic anhydride in the presence of H2SO4 and CH3COONA will give you what? It will give you वंस अगेन क्या, फिनाइल एसिटेट। अब सर ये कैसे हो गया फिनाइल एसिटेट? वेरी सिंपल, ये रहा फिनॉल OH, H को तो आपने बड़े प्यार से उड़ा दिया। सो यहां पर क्या आ गया, COCH3, सो दिस इज फिनाइल एसिटेट। ऊपर भी तो यही था, कॉपी किया है नीचे। सो फिनाइल एसिटेट प्लस व्हाट इज दिस, इसको कुछ तो बोलते हैं ना गाइस, वो जो मार्केट में मिलता है, 10% of this solution is known as dash. I don't know. If you know the answer, guys, please do comment if you feel like. If you don't feel like, don't. Your wish. Anyway, so benzoylation. Benzoylation. Now, what do you mean by benzoyl? You will come to know. So there is this phenol. Guys, ये ध्यान रखना प्लीज, एसिटिक एनहाइड्राइड में और एसिटाइल क्लोराइड में क्या डिफरेंस होता है। खैर, फिनॉल प्लस C6H5COCl, वो जो C6H6 था, एक हाइड्रोजन को उड़ाया तो ऊपर आपने COCl लगा दिया बेंजीन के ऊपर, सो दैट विल बी बेंजोइल क्लोराइड। नाउ बेंजोइल क्लोराइड को आप जब कनेक्ट करोगे गाइस, क्या फर्क पड़ता है, आप कुछ भी कनेक्ट करो कंपाउंड सेम ही बनेगा। H यहां से निकल जाएगा गाइस, तो यहां पर बनेगा O, देन बन जाएगा CO, C6H5 एंड HCl। सो गाइस, यदि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया तो बिलीव मी, दिस एंटायर चैप्टर इज पीस ऑफ केक। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि जब मैंने यहां पर इतना टाइम पास किया था जस्ट टू एक्सप्लेन यू द वर्ड एसिड, रिमेंबर एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which are going to give off what, H positive ions in the solution or protons in the solution, right? Now if by the way they are going to donate H positive ion in the solution, that means they are electron acceptors, okay। आगे बढ़ते हैं। So plus HCl, so benzoyl chloride, and this will be what, plus phenyl benzoate। phenyl benzoate, क्यों phenyl benzoate? क्योंकि ये benzo और आपने प्लस ईस्टर बनाया हुआ है, सो ऑफ कोर्स इट्स अ बेंजोएट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया। नाउ व्हाट इज दिस रिएक्शन विद अमोनिया गाइस? बच्चों वाली रिएक्शन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सपोज मुझे एनिलीन बनाना है, तो यहां पर लिख देता हूं पहले। सो दिस इज नोन एज एनिलीन। सो एनिलीन बनाने के लिए बेस्ट रिएक्शन है ये, फिनॉल लो प्लस अमोनिया गैस को लिबरेट करो, उसके ऊपर में क्या हो जाएगा फिर से आपके पास में, दैट इज यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा NH2। आई मीन नॉट कंपाउंड बनेगा NH2, दैट मीन्स दैट बेंजीन के ऊपर में NH2। सो बेंजीन पे NH2 आ चुका, सो दिस विल बी नोन एज एनिलीन प्लस H2O। सो जब भी कभी आप फिनॉल को अमोनिया से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, एनिलीन प्लस वाटर। आगे बढ़ते हैं। By the way, water क्यों बनेगा? क्योंकि NH3 is what, a strong base, right? So that's the reason why H and this OH, because this is a OH acceptor, so it is going to accept OH. So
H plus OH will give you H2O and the remaining NH2 will be added over here. Simple है guys. आगे next and let's move on to the last reaction. No, ये मैंने अभी लिखा है, so don't worry, और नहीं है. Reaction with zinc dust. जब भी कभी आप कोई भी एक मेटल डस्ट डालते हो, इट्स काइंड ऑफ अ रिडक्शन रिएक्शन गाइस, एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप का होता है. सो इफ यू कैन सी, आपने यदि बेंजीन लिया, ये बेंजीन ही तो है, अरे बस चोटी के ऊपर में OH है गाइस, तुम ना हर चीज में प्रॉब्लम ही होती है तुम्हें. कॉमन सेंस, दिस इज नॉट बेंजीन गाइस, फेनॉल. सो फेनॉल प्लस जिंक लोगे एंड यदि आपने उसको डिस्टिल किया, डिस्टिल तो मालूम ही होगा, डिस्टिल हीट, डिस्टिल खैर, डिस्टिल करोगे तो क्या बन जाएगा? दिस विल बी benzene plus ZnO. What is ZnO? Zinc oxide. So that is reaction with the zinc dust. Okay. So this is all from my side. Tomorrow we'll be completing almost all the chemical reactions of phenol, hopefully. And then there's one more lecture which is going to come up, which is of physics. Okay. Thank you guys so much. Love you all. Keep smiling. I know it's difficult, it's boring, it's frustrating. But I really think, guys, that you need to keep smiling. Bye.